exercise 1. ओके, तो हमने कल 14 क्वेश्चन किए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. ओके, ये कहता है कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to 3 into 10 raised power 3 I cap Newton per coulomb. Part A asks, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on the side whose plane is parallel to the YZ plane. Okay, तो पार्ट ए में ये कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमने एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो ये कहता है कि एक स्क्वायर है जो 10 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो वो पैरेलल है प्लेन टू दिस. सो हम एक बनाएंगे पैरेलल to this. Okay, so this has a 10 centimeter side. ठीक, whose plane is parallel to the YZ plane. तो हमें फ्लक्स ढूंढ करना है. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, बिकॉज ये आई हमारे ये इंडिकेट करता है. ठीक, नाउ तो इसका एरिया जो है इस स्क्वायर का वो हो गया, चूंकि स्क्वायर का एरिया है साइड स्क्वायर. सो साइड कितना है हमारा, साइड हमारा है ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर. ओके, सॉरी, it will be equal to A will be equal to 0.1 meter. Okay, now area, let us say area is S, ये स्क्वायर का एरिया S है, so that will be equal to 0.1 whole square. Okay, now what we have to do, we have to calculate the flux. Now normal to this area will be also along this direction, ds parallel to this axis. So E and ds will be parallel. So flux phi is equal to integral E dot ds. Okay, now this can be written as phi equal to integral E ds cos of theta. Now here ds और E के दरमियान जो एंगल है पैरेलल है, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है. सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री विच इम्प्लाइज दैट cos 0 is equal to 1. So this is equal to integral, we can take E outside it because it is now constant. So E ds cos of 0. Now ds is equal to E, integral ds will be equal to S and cos 0 will be equal to 1. So phi will be equal to, we will substitute the values. So I हमारा उसका मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड है 3 into 10 raised power 3 into S. S is 0.1 whole square. This will be equal to 3 into 10 raised power 3 1 divided by 100. Okay, units will be Newton meter square per coulomb. Okay, now phi is equal to 3 into 10 raised power 1 which is equal Newton meter square per coulomb, that is phi is equal to 30 Newton meter square per coulomb. Okay, now part B. पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी हमें कहता है what is the flux through the same square if the normal to the its plane makes an angle 60 degree with an
with x-axis. Okay, so again these are axes, x-axis, this is z-axis, ये y-axis है, तो ये हमारा स्क्वायर यही है, ठीक। तो E हमारा इसी डायरेक्शन में x-axis के, लेकिन अब जो नॉर्मल टू द एरिया है वो बनाता है एंगल 60 डिग्री। ओके, ds हमारा बनाता है 60 डिग्री। So what will be the flux? Now flux in this case phi will be equal to again integral E dot ds. Now phi is equal to in E ds cos of theta. Now here theta is equal to 60 degree and cos of 60 degree is equal to 1 by 2. So phi will be equal to, इसमें से E निकालेंगे बाहर, E इंटेग्रल ds cos of 60 that is 1 by 2. Okay, so phi will be equal to E into ds means s divided by 2. So already we have calculated this equal to 30 Newton meter square per coulomb divided by 2. That will be 15 Newton meter square per coulomb. Okay. Now, question number 16. Okay. Now, question number 16. What is the net flux of the uniform electric field? जो अभी हमने दिया uniform electric field E in this exercise. Throw a cube of side 20 centimeters oriented so that its faces are parallel to the कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब फील्ड तो यही है जो पहले इस क्वेश्चन में दिया। अब हमारे पास एक क्यूब है, ठीक, दैट विल बी ऐसे, जिसके साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो दिस विल बी लाइक दिस, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, ठीक है। सो ये अब क्यूब है। अब फील्ड की डायरेक्शन यहां पर ऐसे आ रहा है, ठीक, तो ये है E यहां पर, और फिर ऐसे निकलेगा आउटवर्ड फ्लक्स E। नाउ जब यहां पर नॉर्मल वेक्टर डालेंगे एरिया का, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, हियर इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ds, ठीक है। नाउ अगर यहां से फ्लक्स फाई, मिसाल के तौर पर यहां से फाई है, यहां से फाई डैश है, ना यहां पर E और ds के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री है, ठीक, यहां पर 0 डिग्री, बिकॉज दे आर पैरेलल, सो दे विल कैंसल ईच अदर, बिकॉज if we calculate the phi 1, let us say phi 1 will be integral E dot ds, that will be equal to E s cos of this 180 degree, so that will be minus es. Okay, similarly phi 2 here in this case will be integral E dot ds, which will be equal to E s cos of 0 degree, so that is E s. So total flux through this cube will be phi is equal to phi 1 plus phi 2, that is equal to E minus es plus es, that is phi will be equal to 0. So inward flux equal to outward, equal and opposite to the outward flux is equal to inward flux. So total flux through surface is, this cube is 0. Okay, z-axis. Now let us move to the another numerical. So numerical number 17. ये जो है, मैं इसको जो क्वेश्चन है इसको पहले मैं ये फोटोग्राफ डाल के रखूंगा, ठीक है, तो आपको फिर बाद में डाल के रखूंगा, तो आपको फिर वहां समझ क्वेश्चन भी आएंगे। सो continuing with question number 17. Okay, now careful, it states that careful measurement of electric field at a surface of a black box indicates that net outward flux
through the surface of the box is 8.0 into 10 raised power 3. तो एक careful measure electric surface of black box. Let us say ये हमारे पास एक black box है, ठीक है। ये एक ब्लैक बॉक्स है, इसमें कोई भी चार्ज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। उसकी वजह से जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो फाई, क्योंकि जो भी 6 फेसेस हैं इसके 6 के 6 फेस से जब हम उसको टोटल करते हैं ये बताता है कि टोटल फ्लक्स हमारे पास जो है वो 8.0 इंटू 10 रेज पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। पार्ट ए पूछता क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। भाई इसमें नेट चार्ज दैट मीन्स टोटल चार्ज एनक्लोज, क्यू एनक्लोज कितना है इन द बॉक्स। सो पहला पार्ट करेंगे टोटल चार्ज। सो हमें पता है गॉस लॉ से पता है द टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस ब्लैक बॉक्स। ये हमारा ब्लैक बॉक्स है, divided by epsilon naught. Okay, so Q, if we cross multiply this, so Q enclosed will be equal to phi into epsilon 0. Okay, so what is phi? Phi is given 8.0 into 10 raised power 3 into epsilon 0 क्या उतना होता है? Yes, 8.85 into 10 raised power minus 12. So 0.07 into 10 raised power minus 6 coulomb, or which is equal to 0.07 micro. So इस ब्लैक बॉक्स में जो चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है वो हमारा ये निकलता है, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है वो पूछता है बी पार्ट, if the net outward flux through the surface of the box were 0, यानी टोटल जो इस ब्लॉक से फ्लक्स जाता है वो 0 है। तो अब 0 है, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges inside the box? क्या आप ये जो बॉक्स है इसमें कोई चार्ज नहीं था? Why or why not? तो अगर ये कहता है कि इस बॉक्स से टोटल जो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0 बी पार्ट में, ठीक, क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इसमें चार्ज है कि नहीं, वी कैन नॉट। तो ये बोलता है इसमें फाई 0 है, सो दिस कैन बी, वी कैन नॉट कंक्लूड, नो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। नाउ इफ सपोज हमारे पास एक गॉसियन सरफेस में इसमें अगर चार्ज मसलन +10 है, 10 coulomb or microcoulomb minus 10 microcoulomb. So within this surface, though charges are present, but net charge is equal to 0. So phi will be in this case 0. ठीक। दूसरे केस में अगर चार्ज इसमें 0 है लेकिन यहां पर से कोई चार्ज है, बाहर से कोई चार्ज, तो इसका फ्लक्स जो आउट होगा वो इन भी होगा। So total flux again will be 0. So we cannot conclude if phi is equal to 0 that it means that there is no charge inside the box. There may or may not be inside the box. In case there are charges the net charge inside it is 0, then again flux will be 0. Or if charge inside the Gaussian surface is 0, but the flux is coming through other configuration which passes which enters and leaves it. In this case also phi will be 0. Okay बेटा, ठीक। Now question number 18, ये कहता है a point charge plus 10 microcoulomb। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q जो एनक्लोज्ड है एक गॉसियन सरफेस में, प्लस 10 microcoulomb, that will be equal to, first of all तो हमें क्या करना है, SI यूनिट में चेंज करना है, that will 10 into 10 raised power minus 6 coulomb is distance 5 centimeters directly above the center of the square। ठीक है, तो एक स्क्वायर दिया गया है, इसके डायरेक्टली अबव
5 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। तो यहां पर ये चार्ज है आपका क्यू लेंस। ये कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ठीक। थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, ये हिंट भी बताता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये एक, चूंकि हमें पूरा एक वॉल्यूम चाहिए गॉसियन, तो ये किसी में एनक्लोज होना चाहिए। यहां तो ये एनक्लोज नहीं है, ये बताता है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये सारे साइड 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक क्यूब लगा देंगे, उसको एक क्यूब बना देंगे, ठीक है। तो अब इसकी 6 सरफेसेस बन गई। तो अगर यहां से भी, चूंकि ये सेंटर में है ये चार्ज, तो जितना यहां से फ्लक्स जाएगा सरफेस 1 से, सरफेस 2 से भी वही जाएगा, सरफेस 3 यहां से भी, 4 नीचे और ऊपर 6। सो टोटल फ्लक्स सिंस ये सेंटर में है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लक्स, यहां से भी, दिस साइड से भी, तो हर एक साइड से 6 से। तो टोटल फ्लक्स 5 जो होगा दैट विल बी 6π। ओके, नाउ एज पर गॉसियन थ्योरम द फ्लक्स, हमारे पास ये फ्लक्स 6π है, तो 6π विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। सो phi विल बी इक्वल टू 1/6, चार्ज एनक्लोज्ड क्या है 10 into 10⁻⁻6 कूलम divided by 8.85 into 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 6π, so this will be phi will be equal to 1.89 into 10⁻⁴ Newton meter square. Okay, this was question number 18. Okay, now we have question number 19. Question number 19. Okay, now question number 19 is, क्या पूछता है, ये पूछता है भाई a point charge 0.2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeters on edge, ठीक है। what is the net electric flux through the surface, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, क्यूब है, इसका जो इसमें एक चार्ज एनक्लोज है वो कितना है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 पॉइंट इज एट द सेंटर, इसके सेंटर में है, ठीक, बीच में वो इस क्यूब के सेंटर में, यहां से भी उतना है, यहां से भी, यहां से भी, नीचे से भी, सो एक सेंटर में है। तो चार्ज यहां पर है, कितना है, क्यू है हमारा 2.0 माइक्रोकूलम, ठीक है, विच इज इक्वल टू, पहला स्टेप हमेशा ऐसा यूनिट में चेंज करना, ठीक है। सो 8.0 into 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। तो ये इसका हर एक साइड कितना है 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, इसी तरह से यहां तक 9 सेंटीमीटर, तो सभी 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, एज। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस बॉक्स, तो चूंकि नेट फ्लक्स, देखिए यहां चार्ज है, यहां से भी फ्लक्स चला जाएगा, इस सरफेस से भी, इस सरफेस से भी, इस सरफेस से भी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। तो 6, so it will be flux will be, what will be flux, that will be equal to, simply यहां पर हमें 6 नहीं करना है, तो यहां में टोटल फ्लक्स that will be equal to Q टोटल चार्ज इसमें कितना है, और यहां डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। उस प्रॉब्लम की तरह नहीं, वहां पर हमें एक ही फेज था तो हमने वहां 6 बनाया, यहां पर ऐसी गलती नहीं करना, 6 लिखना नहीं, इट विल बी टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स है इसमें, दैट इज क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। सो phi विल बी इक्वल टू, वो ये कितना है 2.0 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय
8.85 into 10 raised power minus 12. Okay, so 5 after calculating it will come out to be ये 12 6 गई इधर, so 2.0 divided by 8.85 into 10 raised power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो यूनिट याद रख लेना, ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी 2.26 into 10 raised power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है बेटा. ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस 1.0 इंटू 10 raised power 3 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. तो एक पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से फ्लक्स पैदा होता है माइनस, क्या माइनस 1.0 इंटू 10 raised power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. चूंकि नेगेटिव साइन है तो ये जो फ्लक्स है इट विल बी इनवर्स माइनस या जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा. ठीक है ना. तो अगर हमारे पास यहाँ एक चार्ज है माइनस है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्स. तो फील्ड भी इनवर्स होगा, फ्लक्स भी इनवर्स होगा. ठीक है. सो ये माइनस है. अब उसके बाद कहता है टू पास थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. तो हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है. लेट अस सपोज ये है हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. ठीक है. स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस. उसकी रेडियस कितनी है? आर जो है हमारा, आर जो है 10 सेंटीमीटर. यहां पर भी इसको पहले एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, 0.1 मीटर. ओके, ये इसका आर है. ठीक है. If the radius of the Gaussian surface were doubled, ये Gaussian surface है, surface नंबर 1. अगर मैं इसको रेडियस डबल करूंगा, यानी समझना, तो ये जो सरफेस बनेगी क्या, ये कहता है क्या फ्लक्स ज्यादा होगा. क्योंकि हमें जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स फाई जो होता है Q by एप्सिलॉन. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच पास. देखिए अगर यहां से एक लाइन जा रही है, हाँ यहां तो डेंसिटी ज्यादा होगी छोटी वाली सरफेस से, बड़ी वाली सरफेस से कम होगी, लेकिन फ्लक्स तो सारा जाएगा. यहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, यहां वीकर फील्ड होगा. यहां चूंकि इनवर्स है तो ऐसे. ठीक है. सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन. सो बाय इंक्रीजिंग द दिस गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल करने के लिए एरिया, सो इट विल नॉट, flux will not change. Now ये कहता है if the result of what is the value of the point charge, what is the value of the point charge. तो point charge का वैल्यू जो इसमें है तो वो क्या है? क्योंकि इसमें जो कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है, ये जिसकी वजह से फील्ड ये है, तो इसी में एनक्लोज्ड है, लेकिन होना चाहिए नेगेटिव. ठीक है. क्यों? बिकॉज जो फ्लक्स है नेगेटिव है. सो इफ वी अप्लाई द गॉसियन थ्योरम, phi is equal to Q by epsilon naught. ओके, जो फ्लक्स दे रहा है तो क्यू किसके बराबर होगा? जो एनक्लोज्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू phi इंटू एप्सिलॉन, विच विल बी इक्वल टू phi का हमारा वैल्यू है माइनस 1.0 इंटू 10 raised power 3 इंटू एप्सिलॉन 0, 8.85 इंटू 10 raised power minus 12. ओके, सो दिस कम्स आफ्टर कैलकुलेटिंग, it comes out to be minus 8.85 into 10 raised power minus 9 coulomb. That is minus 8.85 nano coulomb. क्यों? यहां नेगेटिव साइन की वजह से इनवर्स, हमारा चार्ज जो निकला वो नेगेटिव निकला. ठीक है ना. सो Q is equal to this. Now let us move to another problem. Okay. Numerical number 21. ये कहता है a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge
इसमें अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeters away from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised power 3 Newton per coulomb and points radially inwards, what is the net charge on the surface? ठीक है, तो पहले क्या था, conducting surface, conducting sphere। तो हमारे पास एक sphere है, ये sphere है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो आर हमारा जो है 0.1 मीटर, ओके, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर्स, ओके। हैज एन अननोन चार्ज, तो अननोन चार्ज इस पे है। देखिए कंडक्टिंग सरफेस जो है उसमें सारा चार्ज जो होता है वो सरफेस पे होता है, दैट प्रॉपर्टी यू नो, बिकॉज इन कंडक्टर द चार्ज, जो अगर यहाँ पर चार्ज रखेंगे तो वो प्रिपेल होके बाहर जाएगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो अब यहां पर कहता है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दिस इज इतना, तो यहां से सेंटर से कितना, ये जो डिस्टेंस है ये आर से हम लिखते हैं, ये कितना है 20 सेंटीमीटर्स, दैट इज 0.2 मीटर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई कितना बताता है, इज इक्वल टू, जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10 raised power 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। नाउ ये कहता है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द, अच्छा नेट चार्ज, और ये रेडियली इनवर्स है, इट मींस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फ्लक्स जो है नेगेटिव है। सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ conducting sphere is given outside the sphere is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, ठीक है। So Q will be equal to E into 4 pi epsilon 0 into R square, ठीक है। So Q will be equal to, E का वैल्यू क्या है, क्योंकि इनवर्ट पॉइंट करता है, -1.5 इंटू 10 raised power 3 इंटू 4, दैट विल बी 1/9 इंटू 10 raised power 9, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो इफ वी कैलकुलेट इट, ये कैसे विल बी इक्वल टू -1.5 इंटू 10 raised power 3, दिस विल बी इंटू 0.2 इंटू 0.2, ओके, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 raised power 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल बी -1.5 2 to the 4 इंटू 0.04 इंटू 9 3 10 raised power -6 डिवाइड बाय 9, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे क्यों आएगा माइनस, दिस विल बी इक्वल टू -6.67 माइनस इंटू 10 raised power -9 और Q इज इक्वल टू -6.67 नैनो, ठीक है। इनवर्स वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। नाउ लेट अस मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 22. Now, a uniformly charged sphere, conducting sphere of 2.4 diameter. तो हमारे पास conducting sphere, जो sphere है conducting, आपको याद रखना चाहिए कि जो conducting surface है, sphere होता है, चार्ज उसके बाहर सरफेस पे रिजाइड करता है, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 2.4 मीटर, ठीक है। सो डायमीटर जो है, डायमीटर 2.4 मीटर, तो रेडियस इसकी हो गई d/2, दैट विल इक्वल टू 1.2 मीटर, ओके। नाउ मीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है रो इज इक्वल टू 80
8.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको पहले SI देखो, माइक्रो कूलम SI यूनिट नहीं है तो इसको पहले ऐसा, सो सिग्मा विल बी इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अब कहता है कि ए पार्ट, व्हाट डज इट आस्क? इट आस्क्स फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पहले हमें चार्ज ऑन द स्फीयर, तो चार्ज हमें निकालना है। भाई स्फीयर पे चार्ज क्या, मैंने कहा तो वो कहां होगा? इस पे, सरफेस पे। सो वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय, देखो यहां वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम पे चार्ज नहीं होगा, यहां सरफेस पे होगा, ठीक है। सो चार्ज डिवाइड बाय द सरफेस एरिया। Now what is surface area? Now charge, let us say it is Q divided by surface area 4 pi r square. So Q will be, after cross multiplication, Q will be equal to sigma into 4 pi r square. ठीक है। Now 4 pi r square, so sigma आपको दिया गया है कितना? 80 into 10⁻⁻6 into 4 into pi is 3.14 into r square. r कितना निकला हमारा? 1.2. So it will be 1.2 into 1.2. ठीक है। So after multiplying this, the charge comes out to be 1.45 into 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट इसका है वो कहता है what is the total flux leaving the surface of the sphere। तो अब टोटल फ्लक्स इससे बाहर क्या आ जा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स वो तो हमें पता है गॉस लॉ से, तो वो मैं यहां लिखूंगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाई विल बी इक्वल टू, Q भी हमने देखा 1.45 इंटू 10⁻⁻3, एप्सिलॉन 0 आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, ठीक है, तो फाई विल बी इक्वल टू दिस, फाई विल बी 1.64 इंटू 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। Next, what we will do? We will do numerical number 23. Numerical number 23. ठीक है। So 23. An infinite line charge produces a field of E, जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो लाइन चार्ज हमने पढ़ा है ऐसे, ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, इस पे इन्फिनिटी, तो हम सिलेंडर यहां डालते हैं। ठीक है। तो एक एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स, तो यहां से 2 सेंटीमीटर इसके स्फीयर, तो ये आर जो है, तो यह इस पॉइंट पे यहाँ फील्ड जो है वो ये लिख रहा है, वो बोल रहा है कि इट इज 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो वही बात, पहले इसको SI यूनिट पे करो, दैट मीन 0.02 centimeters. Okay, so कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। चूंकि लाइन चार्ज है तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैलकुलेट करना है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इन्फिनिट चार्ज एट अ पॉइंट फ्रॉम इट E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 pi epsilon 0 by r. So lambda will be equal to 2 pi by cross multiplication 2 pi epsilon 0 r into E। तो अब हमें वैल्यूज देने हैं, 2 into pi 3.14 into 8.85 into 10⁻⁻12 into r is equal to 0.02 into E। What is E? 9 into 10⁻⁴, that will be equal to, इसका यूनिट क्या है? हाँ, चार्ज पर लेंथ, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी
10 raised power minus 7, 10 raised power approximately 10 raised power minus 7 कूलम पर मीटर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है. तो 24 हमें क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 24. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. ठीक है. each other on, ये हमें कहता है कि 2-4 प्लेट्स हैं. ये है क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. 2. नाउ द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट देयर इनर फेसेस. तो यहां पर अगर इनर फेस पे प्लस है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां सिग्मा माइनस है. ठीक है ना. नाउ ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां तो ये बोलता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब प्लस हो या माइनस, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 117.0 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ ये कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ए इनर साइड. तो इनर साइड में क्या है? आउटर साइड में. दूसरा इनर द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स. इसका मतलब यहां पर क्या है? बिटवीन द प्लेट्स क्या फील्ड है, यहां पर क्या फील्ड है और यहां पर. तो यहां पर हम लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे सेकंड और उस पर लिखेंगे थर्ड. देखिए चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इस डायरेक्शन नेगेटिव ई माइनस, क्योंकि इनवर्स होता है. तो चूंकि दोनों वेरी क्लोज है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. सो ई प्लस ई माइनस, चूंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ रीजन 1 में 0 होगा. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी 0 होगा. अब जो ये है यहाँ पर यहाँ लिखूंगा मैं. तो यहाँ रीजन दिस इज सेकंड, थर्ड, दिस इज सेकंड रीजन में क्या है? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मेटल शीट, लार्ज मेटल शीट इज इक्वल टू ई, जो इसकी वजह से प्लस की वजह से. ठीक है ना. दैट इज रो बाई 2 एप्सिलॉन 0. तो किसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन ई प्लस. ई माइनस वो भी इसी डायरेक्शन में होगी. ठीक है. सो ई माइनस का मैग्नीट्यूड ये, ई प्लस ई माइनस का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन 0. चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो दे विल गेट एडेड अप. सो total field in the region 3rd, in between this region 2nd, between the two plates will be equal to rho by 2 epsilon 0 plus rho by 2 epsilon 0, that is rho by epsilon 0. Okay, thank you.